Hey everyone, this is my first video and hopefully it will be hopefully making up to the YouTube, because many times I thought of the idea of making a video thinking I had something to talk, but that idea never came into existence. Today is 5th of November and yes, you all can see कि मैंने अपने बाल तक नहीं झाड़े. I just started the video like that. और lately I don't know what content, मतलब I will not like to call it content. It's not a content. I just felt like I don't know what I will have to offer you, like what insights I will be able to give you, how productive, how fruitful it can be to anybody who watches me. But it doesn't matter, because my only goal when I speak here is to just speak, to just talk. Because since the last 2 years, I have just lost my feeling of talking to anyone. I don't feel like talking. 2 years back, on 4th of November, I lost my father to cancer. Since then, I haven't been feeling very great. I basically feel lost. And the way I look right now, unorganized, disturbed, lost, is actually the reflection of how actually I feel. It is actually the reflection of my life right now. I have not been a very photogenic person in my life. I never liked the idea of the camera. Never. In fact, I'm never comfortable with camera. Because whenever you're posing, camera basically means faking to me. Like, why do you have to fake that pose? Why do you have to do that? And इसीलिए many a times this idea came to me कि I should maybe talk about it somewhere. It's not that I don't have friends or people to not talk, but it's just a thing and I don't feel like talking. Even if somebody asks me, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि even if like even if you don't feel like talking, or even if you feel or even you're so depressed about something, or you're so heartbroken about any of the things, अगर आपसे कोई पूछ लेगा और बताओ क्या हाल है, तो द फर्स्ट थिंग यू विल से कि हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, आप बताओ क्या है. तो वो हमारा नेचुरल होता है कि वो आता ही नहीं कि हाँ, हमारी वो टेंडेंसी नहीं होती बताने की कि नहीं मेरी जान जा रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा, या मुझे नहीं अच्छा लग रहा, और आई एम सैड. द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज़ टू टेल कि नहीं सही है. और हाँ, वैसा ही होता भी. एवरीबडी जस्ट कीप सेइंग दैट. तो शायद मे बी बिकॉज ऑफ दैट I've come to that phase, and basically I feel lost. So maybe I'll put up this video. Maybe, not sure. Maybe I'll put up this video, and maybe I will put up some videos again. Maybe, not sure. और शायद that maybe can, उसको आप चैनल कह सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर कुछ भी कह सकते हैं.
बट मेरे लिए दीज वीडियोस वो मेरे लिए शायद सिर्फ एक बात करने का ज़रिया हो सकता है। मैंने कई बार सोचा इस बारे में that there are people who come to YouTube and talk about so many of their things। तो मुझे लगा कि कैसे कर लेते हैं, ये तो आपकी मतलब अपनी पर्सनल बातें हैं और हाउ कुड यू, बट लेटर आई विथ मैच्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ योर माइंड यू रियलाइज़ कि बहुत तरीके के लोग होते हैं। देर आर जेन्युइन पीपल जिनसे आपको चीज़ें यू गेट इंसाइट्स फ्रॉम देम, एंड देर आर पीपल लाइक बट देर आर पीपल लाइक 99% ऑफ द पीपल जैसे मैं आई मुझे बहुत परफेक्शन दिखता है यूट्यूब में। मैं किसी को भी देखती हूँ, बीट अ फूड व्लॉगर और अ फैशन ब्लॉगर और अ डेली ब्लॉगर, एनीवन, मुझे सबकी चीज़ों में, सबकी बातों में बहुत परफेक्शन दिखता है। लोगों के बाल, लोगों के हाथ, लोगों का लाइटिंग्स, एवरीथिंग। सो पीपल डू इट लाइक दैट। आई डोंट थिंक वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। सॉरी, मुझे खांसी आ रही है। तो मैंने कई बार सोचा इस बारे में, मतलब मैं जिसको भी देखती हूँ तो मुझे तो सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद मैं इतना कुछ परफेक्ट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन। तो मुझे लगा कि नहीं करते हैं। बट फिर एक्चुअली सिंस द टाइम आई हैव लॉस्ट माई फादर देर आई एम डीलिंग विद अ सीवियर ग्रीफ। देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, मतलब ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ इट, देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, बट मुझे लगा कि मैंने कई बार कोशिश की टू फाइंड अ वे टू हीलिंग, जिससे मैं अपने दुख को, एक तो दुख की एक चीज़ होती है कि लोग कहते हैं ना, वो जो गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये एक विडंबना ही है मेरे हिसाब से कि लोग अपने दुख के बारे में बेहतर फील करने के लिए अपने आसपास देखते हैं कि औरों के जीवन में भी तो देखिए आप कितना दुख है, उनके साथ भी तो देखिए इतना बुरा हो गया, वो जी रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से एक ये विडंबना ही है, इसलिए क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से हर इंसान का दुख अपना दुख होता है, किसी की दुख की किसी की उससे कल्पना या तुलना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये एक विडंबना ही है कि जब आपके ऊपर ऐसी कोई दुख या पीड़ा पड़ती है तो आपको जीने के लिए उसी का सहारा लेना पड़ता है। चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको अपने आसपास वही देखना पड़ता है कि देखिए ये भी तो जी रहे हैं ना, इनके जीवन में भी देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, बट दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग ना। तो वही चीज़ जो मेरे हिसाब से मौलिक रूप से सही नहीं है, वही आपके जीने का सहारा बन जाता है। तो उसी तरीके से मैंने कई बार कोशिश की कि मैं ऐसी चीज़ें या ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ जिनसे मैं खुद को थोड़ा ढांढस या खुद को थोड़ा बेटर फील करवा पाऊँ। बट मुझे ऐसा कुछ भी मुझे कभी मिला नहीं जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं रिलेट कर पाऊँ। तो आई फेल्ट लाइक कि दिस कुड बी दैट वन थिंग। तो मुझे लगा दैट दिस कुड बी द वन प्लेस। मुझे बस बेसिकली ये आइडिया स्ट्राइक किया, द ओनली रीज़न जिसके लिए मुझे लगा मैं बात कर पाऊँ वो ये कि शायद 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 इतने सारे दुनिया में इतने लोग हैं, शायद कोई और भी मेरी तरह हो जो ऐसा कुछ ढूंढ रहा हो। तो शायद मैं अगर उस एक इंसान के तक भी पहुंच पाऊँ या किसी भी एक निराश आदमी के लिए मैं वो इंसान बन पाऊँ जिसको देख के लगे कि हाँ देखो ये भी तो जी रहे हैं, ये आर ऑल्सो कोपिंग, या किसी के लिए कोई सहारा, कोई होप या किसी भी टाइप का एक मोमेंटरी बेटर फील कराना ही बन पाऊँ। तो मुझे लगा कि शायद वो ठीक रहेगा, मुझे खुशी होगी और शायद इसी बहाने आई विल फाइंड अ प्लेस टू टॉक वेयर आई कैन पुश माई सेल्फ समटाइम्स कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ऑल्सो अबाउट मी दैट आई एम अ स्टूडेंट
and a business woman, not by choice, obviously. My father had a transport business when he passed that eventually came to me and my sister, and we look after the work. It is a completely male dominated business where like आप जानते होंगे रोडें बनती हैं ठेकेदार. You don't find a woman there. We are new to that. So I'm a juggling UPSC aspirant right now, preparing for mains. The last like 1 month back I had my exam for the state PSC, and since then I've been hoping to make it to the mains, to the second stage. And I took a break after that exam for a week, and उसके बाद मुझे लगा कि मैं पढ़ाई seriously start करूँगी. And I just opened the book. मतलब I look after the work, and I just in my time I open the book, and I just feel lost. I feel lost, and I just kept beating about the bush, और मैं पढ़ती नहीं हूँ. And I have wasted like my 5 or 10 days in that, which I can't afford. I can't afford to waste time, but of course I don't feel like I'm not able to concentrate. Actually मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अक्सर ये होता है कि हमारे दुख, हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स या जो भी चीज़ हैं, एट टाइम्स कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में ऑब्वियसली अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए. बट कई बार लोग ये फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं मेरे हिसाब से कि उसका एक्सेस कितना पॉसिबल है. जैसे सपोज फॉर मी राइट नाउ, आई नो for certain that I am not mentally sane. I am very much in a need of help, but that how is that help accessible to me or for people like us? मेरी तरह बहुत से लोग हैं ऐसे जो दिन में, इनके पास, जो जेन्युइनली एक डिप्रेस्ड या एक काफ़ी बुरे मेंटल स्पेस के उसमें आते होंगे, बट उनके पास ना इतना समय है ना इतना पैसा है कि वो उस मेंटल हेल्थ को एक्सेस कर पाएँ. तो सिर्फ बात इसकी नहीं होती कि मेंटल हेल्थ एक अवेयरनेस है कि नहीं. तो हमारे मिडिल क्लास में ऐसा कहा जाता है, हम इस चीज़ को खुद को ही बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी तरीके से हम कह देते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या डिप्रेशन होता ही नहीं है, कि डिप्रेशन क्या होता है, वो तो कुछ होता ही नहीं है. बट डीप डाउन वी ऑल नो कि होता है. इट्स जस्ट कि सबके पास लग्जरी नहीं होती अपने दुख को लेके बैठने की. आप सब ने, मतलब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने, बट बहुत से लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि जब कोई फैमिली ट्रेजेडी या कुछ भी आपके साथ होता है तो बहुत, मतलब आपके पास हमेशा ये लग्जरी नहीं होती कि आप अपने दुख को लेके बैठ के दुखी हो पाएँ. क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको काम पे जाना होता है, आपके पास समय नहीं होता दुखी होने का. आपके पास समय नहीं कि आप बैठ के रोइए, आप डिप्रेस्ड हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप जीना नहीं चाहते हैं, आपको कोई जीने का पर्पज़ नहीं मिल रहा. दुनिया ये सुनने बैठी नहीं है, दुनिया को अपने काम से मतलब है, तो आप भी नहीं लेके बैठ सकते. दैट्स हाउ इट इज़. तो इट्स नॉट जस्ट कि लोगों को पता नहीं है, या इट इज़ नॉट अबाउट द अवेयरनेस. एक सामाजिक विडम्बना भी है जिससे लोग गुजरते हैं और कहते नहीं. मतलब ये बात सबको पता है बट कोई कहता नहीं ऑब्वियसली. सो या होपफुली मेरा ये वीडियो मैं फाइनली डाल पाऊँगी, और इट इज़ द फर्स्ट वीडियो. और आगे अगर मैंने कंटिन्यू किया तो इट विल बी वीडियोज़ रिलेटिंग टू वर्क, बिजनेस, माई ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मेरी पढ़ाई और डेली लाइफ, जो भी मुझे लगा कि रेलिवेंट है. अभी के लिए बस इतना ही. एंड इट वॉज़ नाइस टॉकिंग. यस इट वॉज़. इतना कह पाई क्योंकि ये कैमरा ऑन करने के बाद एक
सॉरी, एक कैमरा ऑन करने के बाद मुझे लगता है कि आपके अंदर से आपको एक पुश मिलता है कि नहीं अब तो बोलना है. सो आई जस्ट राइट दैट, और मैंने बोलने की कोशिश की एंड आई डिड. बाकी हम फिर मिलेंगे होपफुली. अभी के लिए इतना ही. गुड नाइट.